this meeting. So now recording in progress. ठीक है, ये देखिए आप. Okay. So what will happen is after the class, I'll close this now, and I will also. So can I come out from here? हाँ. बंद कर दूं, right? In case कोई आना चाहता है मैं वो भी रख देता हूँ सर. चलिए. So now this class is getting recorded. Acceptance कोई आया आपको वहाँ पे? फिलहाल तो नहीं आया सर. Oh, Savita's come. Yes. Yes, very clear. I can hear you, madam. Recap what you did before testing. Sure, definitely I'll do that. Just give me a moment. I'll first. Sure. I've tried to record it. Yes, I'm kind of trying. I'm recording the class, ma'am. So once. Just show how to upload it, and there was this error when you said we will use text. You put zero. When you put zero, and then it gave us error on the column side on the report. So we uploaded the report in CXV, and then once you started typing the formula and you put zero, then it gave you error. But when you put the inverted zero, it did not give you the error, right? Perfect. What was the reason? Because I couldn't catch it, and I wanted to ask you what was the reason why it was giving the error. Could you also repeat that part, please? Sure, definitely. So आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? Anybody has the answer? दोबारा. आपने एक नया कॉलम बनाया. कॉलम में आपने टेक्स्ट लिखा, टैक्स, और आपने जीरो लिखा. Her question is that why did we get the error? फिर एरर निकालने के लिए हमने जीरो को डबल कोट में कर दिया. But the first question was that in the first place, why did you get the error? Sir, I think somebody else has joined us. 1 minute. So, because the whole formula was in text, so the system thought that it has to be text and then not the number. So that's the reason we quoted it zero. So the system will think it is text. Is it my understanding is correct? Because I couldn't speak at that time, and it was very difficult for me to move screens to the Power BI at the same time and then look at the screen. So is it correct? And you have to show the formula again now. Perfect. So your answer is correct. Let me correct you on this. What explanation you have given is perfect. So I'll go step by step. When you're working in Power BI, okay, and you're working in the data view. Data is the table view. Table view में what happen in the table view? आप लाइन बाय लाइन जो रोज देख सकते हो, कहाँ पे देख सकते हैं? सिर्फ टेबल व्यू में देख सकते हैं. अगर आपने एक नया कॉलम बनाया है, तो दैट कॉलम कैन ओनली हैव वन डेटा टाइप. दैट मीन्स इट कैन आइदर बी अ नंबर, और इट कैन बी अ कैरेक्टर, और इट कैन बी अ डेट. इट कैन नॉट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, तो हमने क्या किया, हमने टैक्स लिखा और फिर हमने जीरो लिखा, तो हमें एरर आया. क्यों? क्योंकि वहां पे आया था वेरिएंट डेटा टाइप. वेरिएंट मतलब अलग अलग. डेटा टाइप इज नॉट अलाउड इन अ कैलकुलेटेड कॉलम. तो हमने क्या किया, हमने जीरो को भी डबल कोट में कर दिया. तो देखने वाले को क्या लगेगा, जीरो क्या है, नंबर. मगर हकीकत में आपने वो जीरो को कैसे स्टोर किया है, एज अ कैरेक्टर. उसका देखने का एक अलग नजरिया ये है कि आपने अलाइनमेंट पे ध्यान दिया. और मैंने आपसे एक और चीज कहा था कि टेबल व्यू में आप अलाइन नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते आप सेंटर में जाओ, लेफ्ट में जाओ. आप कर ही नहीं सकते. नंबर्स विल ऑलवेज बी अलाइन टू द राइट. कैरेक्टर्स विल ऑलवेज बी अलाइन टू द लेफ्ट. डेट इज कंसिडर्ड टू बी अ नंबर. तो अगर वो डेट है, द अलाइनमेंट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. So what happened over here is, I'll just simply go back to the table view. Okay. Under the table view, this is the column. And the number 2 data file Excel and CSV, which sheet is this? Credit card transaction? Perfect. This is the credit. Yes. This is the credit card transaction. You're right. One tax because it is in the added column 1.
Come again. How did I? Yes. So what I did was I clicked on the option called new table. Okay, stop. Just give me a moment. I have renamed my table to CC. So if you look on the right hand side, you see this? Yes, because your table name will be different. My table name will be different. So I have renamed my table to CC, which means then if I have to simply write the column name. I will not write the table name and column name. ये टेबल नेम एंड कॉलम नेम आप कहाँ पे लिखते थे? टेबल नेम एंड कॉलम नेम कहाँ पे लिखते थे आप? एक्सेल में. इन एक्सेल जब भी आप काम करते हो तो आपको टेबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम देना पड़ता था. यहाँ पे आप सिंपली कॉलम नेम दे दो तो टेबल नेम खुद ही ले लेगा. Are you able to load the data? Okay. Close this. फाइल एग्जैक्टली मैं फाइल ओपन नहीं कर सकता. फाइल क्या ओपन नहीं कर, सिर्फ पावर बीआई का फाइल ओपन. जनरली हाँ फिर आप गेट डेटा में हाँ कनेक्ट विद एक्सेल. Change the table name. Can you show me how to change the table name? You will go over the table name and you will do a double click. ये जो टेबल नेम है ना, हाँ उस पे जाकर आप डबल क्लिक करिए. You will be able to change the name. Tell me if you allowed to, you were able to do it. Right click or double left click? Just double click over the name. You're good. Just double click over the name. Done. Yeah, perfect. You give it the name CC and you should be good. So I have added a new column also. Very nice. How to put the formula? Okay. Can you show me your screen if is it possible? Okay. Yeah, just give me one moment. Just give 1 moment. First, I will stop sharing and then you can start sharing. Okay, perfect. I have stopped. Let me know if you can see my screen. Yes, it's I can see your screen, Savit. Can you see that I have added a new column? I have changed the table name. I have added a new column. No, Savita, you haven't shared the entire screen. I can see your Google Meet. You'll have to stop sharing and you'll have to look for the option of entire screen somewhere on the right hand side. No problem. Yes. Yes, entire screen. Yes. Sir, आपका data load हुआ? इनका load. Okay. Now, okay. Just give me a moment. Just give me a moment. Yes. Now you can do a control plus to increase the font size. Control plus. Yes. Hit it couple of times. Don't leave the control. Hit yes. Look at the font size. It's increasing in the formula. Okay. Now, okay. Just give me a moment. My question is outside the column is going. So every time I select a new column, I have to first save it. Okay. So why that is happening is because you haven't written anything. I'll explain. So once you complete writing, then even if you click outside, it is good. So there's no such rule. Yeah. For example, if you write the number 1, please just write the number 1. Yeah, and press enter. Yes. Look, see, it's still working. Now, why it did not work previously? Because you did not write anything after column equal. Am I okay with you so far? Got it. So how to now if I say if? Very nice.
My table is Stop. Yeah, hit the tab. So now simply give me the column name. Just write the word amount. AMO. Just give me a moment. Just stop one moment. आपको if condition लिखना आता है? हाँ, आपको if condition लिखना आता है Excel में? IF. So we are writing that same if condition over here. The syntax is exactly the same. Okay. मैंने पहले column का नाम आया, फिर equal to, then no problem. You have the word if. ठीक है? And now she's creating the column at the moment. Yes. So what you will do right now, Savita, you will press the tab button. Press the tab button, please. Perfect. Did you get this? Yeah, which means कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी. You did not have to write the entire thing. You selected the right column and you could hit the tab button. Am I okay with you so far? Yes, because I am relating it to VLOOKUP. So VLOOKUP, we put VLOOKUP and then we select the table and the rows and then drag it. So here we don't have to do it. We just have to type it and it takes it automatically. Perfect. But remember, it didn't come automatically. You had to press the tab key to complete the formula for you. Okay, press the tab key. Yes. Okay. Now. Okay. Now then table amount. So the Stop. amount has Should be greater than. For example, 1 lakh rupees then, and it should be tax. Okay. Yes. Comma. Because we are looking for tax. And then what was your condition? My conversation was that you cannot have a text and a number since you have. Okay. We wanted to know that if it is more than like 10,000 or 1 lakh, then the tax should be 0. Okay, so if you write the number 0, you will wrap it around double quotes. What my formula is. Perfect. Perfect. Bracket close. And that's and we can also use it in a like if it is 0, just put no tax or something like that. Perfect. Perfect. Okay, And also the name of the column will appear before the equal to sign. You see the equal to sign? Yes. Before the equal to sign, to the left of the equal. Move to the left. Yes. Yes. So that, yeah, I wrote the word tax over there. 1 second, huh? Yes. I can change it to whatever you want. And remember, Savita, your file is not saved. Please save your file. Yes. Yes. Always. Always. Okay. You can click on more options at the bottom left and you can determine where do you want to save it. Okay, so after this is done, I got the highlighting point, but you have to show me the view once again. Okay, once again. Because I was trying it yesterday and it was not happening. No problem. I'll guide you. I'm sorry it's taking 2 days this thing, but no problem. Sir, आपका data load हुआ? Okay. It is only asking me to save it here only. Okay. You see on the bottom left, there's browse this device. Yeah, browse this device. Yeah, you click on that. Here from here you can do. Okay, got it. Okay. I will be explaining the different views in Power BI to her. आप एक बार देख लेना. Okay. Because आप अभी जो data load किए हैं and how can you work around with it, मैं भी बताने वाला. Yeah, Savita, we can go ahead. Okay. So Savita, what you do right now, you stop sharing. I will share my screen and I will explain the entire screen once again. Okay. Okay. Stop sharing. Yes. Thank you very much. And I am okay. Now I'm quickly giving everyone a recap. So you are looking at my screen. The first thing is we need to understand the interface. I'll make it quick and fast. The interface is very similar to Excel or any Microsoft application, MS Office. What is this entire strip called? The ribbon. Within the ribbon, what do we have? Perfect. These are my tabs. Within the tabs, what do you have? Perfect. Groups. And within the groups, क्या हो गया आपके? Options. ठीक है? Perfect. Now, the next thing is what we need to understand when we are working in Power BI desktop, you are not designing a dashboard. आप ये शब्द use ही नहीं करेंगे dashboard. ये शब्द हम कब use करेंगे? I will explain. What are you designing? You are designing a report. मैं दोबारा कहता हूँ. What are you designing? It's called a report. Yes. And now there are different views over here. What are the different views? So the different views आप देखेंगे. So this is called
R for report. This is my T for table. This is my M for model. And ये तो यहाँ दिख ही रहा है, that is basically DAX. ये पहले ये T नहीं था, ये D था, D for data. इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था ये RD और फिर अपनी X को चेंज कर देना, बट अभी ये RD नहीं हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया और ये M हो गया. R for the report view, T for the table view, M for the model view. Now, once again, when we are in the report view, this is called our page. How do I know? At the bottom आप देखोगे page 1 लिखा होगा. अगर आपने यहाँ पे प्लस कर दिया तो देखिए ये बोलता, it says also a new page. Look at this. It says new page. So the way when we work in Excel, it's called a sheet. The same way when you're working in Power BI, this is called a page. However, इनके दो नाम हैं. It's called a page also, and it's also called a canvas. And I will tell you why it's called a canvas. Okay. So this is your page. And this part over here, what we see, these are called PANE panes. So this is called your filter pane. This is visualizations pane, and this is called the data pane. What do you actually, अगर आप simply देखोगे ना, what do you mean by PANE? Panes is actually nothing but sections. So अगर आप देखने जाओगे, another word for sections is the word called panes. Okay. So and are these the only panes? The answer is no. There are many more panes. अगर आपको देखना है तो view tab में जाके there are many panes which आप activate कर सकते हैं. As the time goes, we will talk about them. देखिए bookmark भी है, selection भी है, ये performance भी है, slicer भी है. Look at the number of sections. That doesn't give any space left over here. That is the reason what we generally work with is with the default interface, which has the filter, the visualizations pane, and the data pane. Now, the first thing जो आपको मैंने कल सिखाया था, sorry, day before yesterday, was how do you load data. Now, before I go into the different views, अगर आपने कोई data load ही नहीं किया है, if you haven't loaded any data, going into any view will not make any difference. But if you have loaded data, and if you go into the table view, which is right one below your report, you can look at the line by line of your data. इसे हम कहते हैं row level data. And when I started the class on day 1, I told you a very important statement. In Power BI, आप data entry नहीं करते. I repeat once again, आप data entry नहीं करते. Now you may say, what do you mean by data entry? For example, this number is 20,573. You can't tell me go and make it 74. नहीं. इनका मानना ये है कि अगर आपको डेटा चेंज करना है, you go to the source and change the data at the source level, and you refresh the data, because here you are basically supposed to build a report, you're supposed to build visualization, you're not supposed to catch data and only change one cell. तो आप क्या कर सकते हैं? You cannot remove rows, you can remove columns. मैं दोबारा कहता हूँ, आप कॉलम को निकाल सकते हैं, ओके, आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो भी आप करोगे पावर बीआई डेस्कटॉप में, इट हैज नो रिफ्लेक्शन टू द ओरिजिनल डेटा. आपका ओरिजिनल डेटा जैसा था वैसा का वैसे ही रहेगा. दैट इज व्हाई मैंने आपसे कहा था इट्स लाइक अ वन वे ट्रैफिक. ओके, एंड द सेम डेटा आपने लोड किया, आपने लोड किया, मैंने लोड किया, आपने लोड किया, हम सभी ने वही डेटा लोड किया है, एंड वी ऑल ऑफ अस कैन हैव अ डिफरेंट आउटपुट. क्यों? क्योंकि आपने कोई अलग कॉलम बनाया है, आपने 4 कॉलम निकाल दिया, आपने 10 कॉलम निकाल दिया. Okay, so that is also possible. Everybody okay with me? Good. That's a nice one. That is one choice. But another choice is that आपने data load किया Power BI में. Now you have a mirror image of that data on your system, on your Power BI. If you want to add a column, you can add a column in that Power BI report. But will that column appear in my data? Answer is no. So for example, आप ये देखेंगे मैंने ये कॉलम बनाया टैक्स. Look at this. ये मैंने टैक्स बनाया. बट हकीकत में क्या ये कॉलम ओरिजिनल डेटा में है? द आंसर इज तो कहां पे है? पावर बीआई में. नो प्रॉब्लम, वील डू वन राइट नाउ. ठीक है, तो आपने डेटा लोड किया अभी वो, हाँ, दैट्स योर रो लेवल डेटा. ओके, एंड मॉडल क्या है वो अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, बट अगर आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका टेबल का एक छोटा नाम मिलेगा और उसके सारे कॉलम के नेम मिलेंगे. बट यू नो व्हाट, वेरी इंटरेस्टिंग, आप मॉडल का ना फोटो देखिए, ये देखिए आप, यू कैन सी डिफरेंट टेबल्स एंड यू कैन सी सम कनेक्शन बिटवीन देम. ये देख रहे हैं आप? इफ यू लुक एट द आइकन, जस्ट लुक एट द आइकन ओवर हियर. सो फॉर हाउ दिस इज रिलेटेड, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू इज
Ma'am, are you okay till here? So far, so good? Yes. Okay. So now the next step, we already do this. We will load Excel data. Okay. तो for example, आप कहाँ पे गए? Get data में जाइए. Now the conversation is, Syed sir, get data from which view do I need to go? Guess मारिए आप. Just take a guess. हाँ, मतलब मैं I'll repeat my question, Syed sir. My question is कि मुझे अगर get data जाना है, तो मुझे R में जाना है, T में जाना है, M में जाना है. क्या लगता है आपको? टेबल. सैयद सर, आप ना किधर भी चले जाओ. हाँ, मगर आप टी में मत जाना, उसके अलावा किधर भी चले जाओ. अब देखो मिला आपको होम टैब में. नहीं, आपको देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप स्क्रीन पे देखो. हाँ, तो आप परफेक्ट. सो सैयद सर, आपका स्टोरी क्या बना कि यू कैन बी इन एनी व्यू. तो इट्स नॉट दैट आई हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर व्यू टू गो एंड टू गेट डेटा. आई कैन बी इन एनी व्यू. मुझे वो होम टैब में, बट आई शुड नो आई हैव टू गो टू द होम टैब टू गो एंड डू गेट डेटा. कॉन्सेप्ट ओके? हाँ, if my question would be that Syed sir, I want to look at the row by row data. अभी आप कौन सा, now which view I'll go, मैम? क्या लगता है आपको? Row by row. हाँ, perfect. अगर मैंने आपको कहा कि मुझे वो बार चार्ट बनाना है या मुझे वो लाइन चार्ट बनाना है, अब मुझे कौन से व्यू में जाना पड़ेगा? जबरदस्ती फर्स्ट. यू आर राइट, द रिपोर्ट व्यू, क्योंकि वो उसके अलावा मैं किधर और कर ही नहीं पाऊंगा. ओके. एंड गलती तो आपको करनी चाहिए, मगर क्या गलती नहीं करेंगे आप, वो भी सुन लो. अगर आपको कोई डेटा ओपन करना है, लाइक एक्सेल का डेटा ओपन करना है, तो आप फाइल ओपन में नहीं जाएंगे, आपको गेट डेटा के थ्रू जाना पड़ेगा. क्योंकि फाइल ओपन में आप एक ही चीज ओपन कर सकते हैं, दैट इज अ पावर बीआई फाइल. कॉन्सेप्ट. चलो लेट्स मूव. सो नाउ वेयर डू आई गो? विच एवर व्यू यू आर, नो प्रॉब्लम, यू विल गो गेट डेटा. फर्स्ट वन, एक्सेल वर्क. Now, what instruction are you giving to the system? You're giving the instruction that you're connecting to a data source. Data source का मतलब क्या है? जहां पे आपका डेटा बैठा हुआ. ओके, वो हो गया आपका डेटा सोर्स. और वो क्या है? इट्स एन एक्सेल वर्कबुक. ओके. नाउ विच फोल्डर आई वांट यू टू गो? वापस से वो वी वाला फोल्डर. नाउ यू गोइंग इनटू अ फोल्डर कॉल्ड पावर क्वेरी. मैं दोबारा बोलता हूं, यू गोइंग इनटू अ फोल्डर कॉल्ड पावर क्वेरी. देखिए आराम से मिल जाएगा आपको पावर क्वेरी. पावर क्वेरी में जाएंगे ना आप, फर्स्ट फोल्डर का नाम है इंपोर्ट डेटा. Ready? Yes. Now you will see two files. एक का नाम है one minute. The first will be Excel sheet and name ranges, and one will be multiple tables in Excel. Now I have a question. By default आपका डेटा कौन से फॉर्म में रहता है? By default वो एक रेंज रहता है. तो अगर वो डेटा को आप पावर बीआई में लोड करेंगे ना, वो उसे शीट बुलाएगा. शीट. आई विल एक्सप्लेन द एंटायर थिंग. ओके. उनके अलावा जो भी है ना, वो आपको एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा. अगर आपने एक्सेल में गए और टेबल बनाया, देन यू विल गेट टेबल. आप एक्सेल में गए, आपने नेम रेंज बनाया, देन यू विल गेट नेम रेंज. सो फर्स्ट स्टेप, लेट्स सी इन द मोस्ट रॉ फॉर्म आपका डेटा कैसे रहेगा. सो क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेल शीट एंड नेम रेंजेस. ओके, बिफोर आई गो अहेड सर, आप कोशिश करिए दोनों फाइल सेलेक्ट करने का. मुझे बताइए हो सकता है या नहीं हो सकता. आराम से बोलता हूं मैं. आप कोशिश करिए, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, एक ही बार ट्राई करिए. मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए. कैन यू सिलेक्ट टू फाइल्स एट द सेम टाइम? No. Can you hear me? Yeah, I heard you. I'm asking the same question to somebody else over here also. Sir, no? That means अगर मैं आपको बोलूं ना, अरे लोड द डेटा फ्रॉम योर इन योर, आपको मैन्युअली पहले एक में जाना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, फिर सेकंड में जाना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा. हाँ, आप हाँ, तो आई कैन से दैट सिंगल थिंग. उसका मतलब क्या हुआ सुनिए. देयर इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी आई मे लोड डेटा फ्रॉम वन फाइल, आई मे लोड डेटा फ्रॉम अनदर फाइल, I may load data from the net. कभी कभी क्या होता है, some people have some, now for example they are all governing bodies. अगर ये चीज मैं मान लीजिए किसी को सिखाता from the finance, उनके लिए they want to see कि what are the updates on the website, कि NSE के वेबसाइट पे क्या है, कि CB के वेबसाइट पे क्या है. तो उनके लिए डेटा सोर्स क्या होगा? वेब. उनका क्या हो जाएगा? वेब. क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो वेब से डेटा पुल कर रहा है. Are you seeing where I'm trying to go? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही पावर बीआई फाइल में I can have data coming from multiple data sources. I can have data from n number of Excel files. I can have data from the web. I can have third-party website. Multiple. So far so good. अभी ये सेम चीज आप एक्सेल में भी कर सकते थे, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था. ऐसे नहीं कर सकते. आप करते थे ना, अलग अलग फाइल से डेटा पुल करते थे, आप वी लुकअप लगाते थे, कर सकते.
अच्छा, तो मैंने सबसे पहले एक्सेल शीट नेम रेंज लिया, मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। आई एम अज्यूमिंग यू सिलेक्टेड द फर्स्ट फाइल, ओके। ना, आप मेरा स्क्रीन देखिए प्लीज एवरीवन, या ये देखिए आप, ये आइकन से आपको वाकिफ होना जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइकन। सैयद सर, ये आइकन क्या लगता है आपको, पहला वाला? परफेक्ट। दैट मीन्स वो आदमी गया, he has taken the pen, converted into a table and he's kept it ready for me। मगर एक चीज आप याद रखिए, अगर आपको टेबल मिला है, ओके, तो ऐसा मत सोचिए कि गारंटी आप टेबल ही लेंगे। हाँ, वेरी गुड। दैट so that you फाइल में गए। हाँ, ये देखिए। अभी ये क्यों आया सर, क्योंकि आपके मेमोरी में है। अब हाँ, अभी आप वही चीज, आप अगर रोज पावर बीआई में काम करेंगे और रोज अलग अलग फाइल ओपन करेंगे, तो जो लास्ट वाला फाइल रहेगा ना, वो रिसेंट में आएगा। ये सेम चीज आपके, तो एक एक ही नहीं चाहिए, उसके लास्ट मेमोरी में करीबन 5 या 10 रहता है। एंड द सेम इज एप्लीकेबल फॉर एक्सेल आल्सो सर। एक्सेल में भी आप जाएंगे ना, रिसेंट करके मिलेगा आपको। हाँ, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, रिसेंट वाला फाइल है। ओके, सो नाउ इसका इसका कॉन्वर्जेशन सुनिए। अगर आपके पास, आपने टेबल डेटा डिफाइंड है, तो आप ये गारंटी लेके नहीं बोल सकते कि आपको टेबल ही चाहिए। वो आपको दोनों ऑप्शन देगा, वो आपको टेबल वर्जन भी देगा और वो आपको शीट भी देगा। व्हाट डू मीन बाय, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू मीन बाय शीट? जो शीट का नाम है ना, वो आपको शीट भी दे देगा। व्हाट इज द डिफरेंस? शीट में यू मे गेट अनवांटेड डेटा। अनवांटेड मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेबल यहाँ पे और आपने नीचे कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, तो वो फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट वो पूरा डेटा आपको पकड़ के दे देगा। मगर अगर आपने टेबल कहा, तो उसे तो उसे मालूम है कि हेडर क्या है, उसे मालूम है डेटा क्या है। और यहाँ पे ना आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेबल बनाया, नया रो अगर आ तो गारंटी, अगर हमने रिफ्रेश किया, वो आपके पावर बीआई रिपोर्ट में आ जाएगा। मगर अगर आपने टेबल नहीं बनाया, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मैं नहीं बोलूंगा गारंटी आएगा, मैं आपको बोलूंगा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी ओके? चलिए बैक टू माय स्क्रीन। If you go by it, the first preference should be given to a table, because table is dynamic. Table table is जो टेबल में जाएगा वो आएगा ही आएगा। शीट में है, वो आएगा या नहीं आएगा उसका, यू मे नॉट नो। नो प्रॉब्लम, ओके, माय स्क्रीन प्लीज। सो दिस इज द टेबल। और देखिए मैंने क्या अभी यहाँ पे ना, अगर मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये डिस्प्ले ऑप्शंस, ये ड्रॉप डाउन, ये देखिए एनेबल प्रीव्यू नाउ, एंड यू हैव अ चेक बॉक्स। 1 मिनट, लेट मी थोड़ा जूम, या सॉरी, स्टेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये, हाँ, ये देखिए आप। तो इफ आई वांट मल्टीपल, आई हैव टू यूज दिस चेक बॉक्स। आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले आ जाएगा। एंड ही विल नॉट शो यू द एंटायर डेटा, ही विल ओनली शो यू टॉप से सम 20 या 30 रोज। तो इसे आप डिस्प्ले कहते हैं। नाउ इफ यू लुक एट माय स्क्रीन वंस अगेन, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, डिस्प्ले यहाँ पे आ गया, शीट 1। ओके सर, सॉरी, आपका नाम क्या है? वैभव, आराम से, आप भी शीट 1 पे क्लिक करिए। वैभव, आपको मेरा स्क्रीन नहीं देखना, आप खुद का स्क्रीन देखिए। मुझे बताओ हेडर बराबर है कि नहीं है, आराम से बता। शीट 1 पे क्लिक कर। आपका जो स्टोरी बनेगा ना, रिमेंबर, आपका स्टोरी हमेशा बनना चाहिए टॉप से। दोबारा कहता हूँ, थोड़ा देर है, आपका स्टोरी मतलब कि मेरा डेटा क्या है, मेरा हेडर क्या है। और नाउ ना, यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर आईज कि आपका डेटा दिखना कैसे चाहिए।
देखिए एक्सेल ना इज वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल। यू नो एक्सेल ने क्या किया है, एक्सेल हैज गिवन द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग टू नॉन प्रोग्राम। आप ये यही बिल्डिंग ले लो साहब, मेरे हिसाब से ये बिल्डिंग में एक भी रूम नहीं होगा जिसमें एक्सेल नहीं होगा। और जो आदमी यूज कर रहा है 99% मैं आपको लिख के बताता हूँ कि वो प्रोग्रामर तो नहीं होगा, मगर फिर भी वो एक्सेल में अपना एनालिसिस बना सकता है। एक्सेल हैज गिवन द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग टू नॉन प्रोग्रामर्स। बट द मोमेंट आप थोड़ा आगे जाते हैं, आप पावर बीआई में जाते हैं या आप कोई भी और टेक्निकल टूल में जाते हैं, यू डो नॉट गेट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डूइंग वॉट एवर यू वांट। पहला फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपका खींच लिया, यू कुड नॉट, कि एक ही कॉलम में आप दो डेटा टाइप नहीं रख सकते थे। एक्सेल में कौन रोकता था आपको? एक्सेल में तो आप भरपूर कर सकते थे, दो क्या आप पांच भी रखो, आप डेट भी लेके आओ, आप टेक्स्ट भी लेके आओ, नंबर भी लेके आओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, when you're going to load data in Power BI, it has to be in a form of a table। अब मैं फॉर्म मतलब वो नहीं, वो जो टेबल एक्सेल वाला, बट फॉर्म का मतलब ये है कि हेडर एक है और हेडर को लग के डेटा है। अगर मेरा डेटा ऐसे फॉर्म में नहीं है, क्लीन नहीं है, तो मुझे उसे मशीन में डालना पड़ेगा जिसका नाम है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या करता है, वो हमारे डेटा को नीट और क्लीन करता है, जो मैं आपको आज स्टार्ट करने वाला हूँ सिखाने के लिए। बट सबसे पहले सर, वैभव स्टोरी ऊपर से स्टार्ट कर, मुझे ये बता कि क्या ये डेटा टेबल फॉर्म में है, क्या तुझे लगता है? परफेक्ट। क्या उसने हेडर बराबर खींचा है क्या टॉप से? नहीं। हेडर कौन सा लाइन में? 1 2 14 लाइन देख, बराबर है। तो इसका मतलब यह है वैभव कि हमारे सिस्टम को इतना ज्ञान नहीं है कि हेडर कौन है, हेडर नहीं है। वो अगर उसे हेडर नहीं मिला तो जबरदस्ती किसी को भी हेडर बना देता है। इसने जबरदस्ती दिल्ली दिल्ली सप्लायर लिमिटेड को हेडर बनाया। तो अगर आपको ये चैप्टर से की पॉइंट खींचना है ना, तो ये खींचो आप कि पावर बीआई को हेडर की जरूरत है। खलास बात, उसको हेडर की जरूरत है। अगर उसको समझ में नहीं आया, वो किसी भलते को भी पकड़ के डाल देगा कि आप हेडर हो, बट ही विल नॉट बाईपास एनीबडी विदाउट द हेडर, because that is the way the data appears in the table view of your RTM। अब वो अलग बात है सर कि मेरा डेटा सही नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, माय डेटा दिस इज नॉट इन ऑर्डर, सो वील टॉक अबाउट इट। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट शीट नंबर 2। नाउ इज शीट नंबर 2 आल्सो ओके, यस और नो? नो, आई एग्री विथ यू। लुक एट शीट नंबर 3, वो भी नो है। लुक एट नाउ, ये आइकन को आप ध्यान से देखिए, ये आइकन का मतलब क्या है? आदिल सर गेस, सर गेस। यस, ये आइकन आपने एक्सेल में कब देखा था? वेरी क्लोज, क्लोज, क्लोज। आदिल सर, आइदर यू आर अ टेबल और यू आर अ रेंज। और रेंज में मैंने आपको क्या सिखाया था? एवरी सेल हैज एन एड्रेस, कॉलम नेम, रो नंबर। मगर अगर मुझे रैंडमली चार लोगों को नाम देना है तो मैं इसको क्या बुलाता हूँ? हमने किया था ना, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या किया था? डिफाइन नेम, नेम रेंज, नेम रेंज। दीज आर नेम रेंजेस, दीज आर नेम रेंजेस। नेम रेंजेस वो होता है ना, हमने सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया था और हमने नेम रेंजेस दिया था। अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाई विल आई नीड अ नेम रेंज, कभी कभी ऐसा डेटा मिलेगा ना आपको जिसमें हेडर ही नहीं है। रियली? ओ अभी, ओ सॉरी सॉरी। एडमिट। सो दिस इज बेसिकली माय नेम रेंज। इससे क्या हो जाता है, नाउ यू अंडरस्टैंड दीज आइकन्स, so that when you're going to load data back into Power BI, you will know कि this is a table, this is a sheet and this is a name range। अगर कुछ नहीं मिलेगा ना आपको, सुनिए, आपको ये जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली exactly, ये डिफॉल्ट है। दिस इज इम्प्लिसिट, एवरीबडी एल्स इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिटली आपको शीट ही मिलने वाला है। अभी एक चीज आप याद रखिए, जब भी आप खुद का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं ना, जब भी टैक्स भरने के लिए आप आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, तो क्या आपको बराबर हेडर आता है कि पहले टॉप पे 6 लाइन में आपका बैंक का नाम आएगा, आपका अकाउंट का नंबर आएगा, आपका बैंक का ब्रांच का नाम आएगा, फिर जहां पे
कहाँ पे 6th 7th रो पे ना आपका हेडर चालू होगा, फिर आपका पूरा डेटा आ जाएगा, और लास्ट में ना वो कुछ और भी आएगा, क्रिएटेड ऑन करके टाइम स्टैम्प करके आ जाएगा. तो how am I going to clean this is what I'm going to speak about. अच्छा, so right now since मेरे पास टेबल है, तो मैंने ये टेबल वर्जन पे क्लिक किया, और मैंने ये नेम, ये जो है ना डेटा, मैंने डेटा पे क्लिक किया. ये देखिए, लुक एट माय स्क्रीन. आई हैव क्लिक्ड ऑन द फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज जुलाई 2017 एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन डेटा. सो फार सो गुड एवरीबॉडी, यहां तक आ जाइए आप लोग. सो व्हाट हैव आई लोडेड? आई हैव लोडेड वन टेबल एंड वन नेम रेंज. दोबारा कहता हूं धीरे, आई हैव लोडेड वन टेबल and one name range. Everybody okay with me? अब जाके अगर मैं कहां पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, you will always get these 3 buttons. One is load, one is transform, and one is cancel. We won't talk about this button. This is self-explanatory. अगर आपने load पे क्लिक किया, then your data is visible into the RTM. I repeat, it is available in the RTM when you click on the load. But when you click on transform, then you are enabling Power Query. कहां पे लेके जा रहे हैं आप पावर क्वेरी में लेके जा रहे हैं. ओके, अभी के लिए दोबारा बोलिए. हाँ हाँ, दोनों, क्योंकि आपने दोनों सेलेक्ट किया है ना, सो योर इंस्ट्रक्शन इम्प्लिसिटली इज गोइंग फॉर बोथ. एक्चुअली इम्प्लिसिट नहीं है सर, वो तो एक्सप्लिसिट हो गया, क्योंकि सिंस हमने दोनों सेलेक्ट किया है, इट इज टेकिंग एज एन एक्सप्लिसिट कि आप दोनों को पावर क्वेरी में जा रहे हैं. So we have to select July 2017 and data, not data 1. Perfect. Okay. Now, if your conversation is why data, why not data 1? So that's a personal choice. That is my choice. I am telling you that I want you to select one table and one name range. That is what I have told you. Okay. So far, so good? Yes. Yeah. Now, by default, मैंने आपको क्या सिखाया? आप कहां पे क्लिक करेंगे? लोड में. एवरीबॉडी ओके विथ मी? चलिए लोड पे क्लिक करिए. The only difference between the first session and today's session is, in the first session मैंने CSV पे कनेक्ट किया था, तो वहां पे कोई भी मेरे साथ KBC नहीं खेला कि टेबल, शीट, नेम रेंज. क्यों? क्योंकि CSV में आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है. CSV में आपके पास ये सारे ऑप्शंस ही नहीं है. मगर बिकॉज आपने एक्सेल में कनेक्ट किया है, एंड बनाने वाले ने टेबल भी बनाया है और नेम रेंज भी बनाया है, तब जाके आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आए हैं कि आपको कौन सा वाला वर्जन चाहिए. वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर आपने टेबल बनाया है तो आप ये मत भूलिए कि शीट, आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा, आपको शीट भी मिलेगा, आपको टेबल वाला भी मिलेगा. आप सोचोगे कि अगर ये टेबल है तो मुझे शीट ही क्यों बताना, वो आपको सेलेक्ट करना है. दैट इज योर चॉइस. तो आप ये मत सोचिए कि सिंस मैंने टेबल बनाया है तो आप तो मुझे शीट बताने की जरूरत ही नहीं है. आई अग्री, जरूरत नहीं है, मगर वो फिर बताएगा आपको. Everybody okay with me? अच्छा, now what do I want to do? I want to create a visual. सर आपका नाम क्या है सर? रोहित. अच्छा रोहित, now मुझे क्या बनाना है? Obviously I will guide you. मुझे अभी एक विजुअल बनाने का है. ओके, तो मैं कौन से व्यू में जाऊंगा? सॉरी, नहीं, विजुअल मतलब मुझे चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है. परफेक्ट, चलिए रिपोर्ट पे क्लिक करिए. एवरीबडी इज ऑन द रिपोर्ट व्यू. आपने अगर डे 1 का फाइल है तो एक नया पेज लीजिए. अगर आपका नया फाइल है तो आप पेज 1 पे ही काम करिए, नो प्रॉब्लम. हाँ, नया, अगर आप आपका डे 1 वाला फाइल है ना, सो दिस इज ओके विथ यू. दैट्स फाइन. Exactly. So that's why you're on page 1 at the bottom left. Yeah. For the remaining people, कहाँ पे गए आप? Page 2. Okay. Okay. Now, how do I actually get that? टाइम इन द नेक्स्ट 1-2 आवर्स इतनी बार करेंगे ना आप कि आपको ये मतलब ये जहन में आ जाएगा आपके. समथिंग न्यू, वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट.
तो आप ये मत सोचिए कि हाउ एंड व्हाई एंड व्हेन, वर्क फॉर 15 मिनट्स यू एग्जैक्टली कम टू नो कि कहाँ क्या। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये व्यू में हो, आप ये व्यू में, ये व्यू में, गिव योरसेल्फ सम टाइम। बोलिए सर, इसको क्लोज कर दीजिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपका डेटा आप ओके करिए। हाँ, आपने सिर्फ डेटा लोड किया है सर। आप दोबारा गेट डेटा में जाइए, दोबारा पहला ऑप्शन में जाइए, एक्सेल वर्कबुक, पहला वाला ऑप्शन में दोबारा सेलेक्ट करिए एक्सेल शीट एंड नेम रेंज। मैंने आपसे कहा था सर, ये इस पे भी क्लिक करना था, पहले वाले। हाँ आपने खाली, हाँ अभी बस हो गया। अब वापस से नहीं लूंगा ये, अभी मैं बोलूंगा लू। हाँ ये देखिए, अभी ये देखो राइट हैंड साइड मेरे को 3 मिलेगा। हाँ सर, अभी मुझे ये टेबल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी टेबल्स आर देयर ऑन योर सिस्टम। कितने टेबल्स है? मैं धीरे बोलता हूँ, आपके सिस्टम में आपने कितने टेबल्स लोड किए हैं? ये देखिए, आपको कहाँ, आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए सर? कौन से पेन में जानी चाहिए? हाँ, आपने 3 टेबल्स लोड किए हैं। सीसी तो हमने डे 1 पे लोड किया था, अभी हमने डेटा लोड किया है और हमने जुलाई 2017 लोड किया है। Am I okay with you? मैंने आपसे क्या कहा था, एक ही पेन है जो तीनों व्यू में कांस्टेंट है। एक काम करिए, माउस लीजिए, तीनों व्यू में जाइए। 3 व्यू मतलब राइट नाउ इन द रिपोर्ट, आप एक बार टेबल पे क्लिक करिए, आप एक बार मॉडल पे क्लिक करिए। एक ही पेन सेक्शन है जो तीनों में कॉमन है। कौन सा पेन है वो? परफेक्ट। एक सेव फाइल सेव कर दो, लोकेशन ऑलरेडी है, आप लोग भी सेव कर दो। चलिए, आशीष सर इज विद द क्लास, ही इज लेफ्ट द क्लास। बीच में थे, अभी नहीं थे। चलो, नो प्रॉब्लम, नो। मैम, यू आर देयर, यू आर एबल टू फॉलो? ओके, चलो लेट्स मूव सर। ओके सर, देखो, परफेक्ट। चलो, अब ओके नाउ, अभी मुझे ये बताइए कि अगर मुझे मेरा पहले, आप लोग ने नया पेज ले लिया? ओके नाउ रोहित, मुझे ये पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं कहाँ पे जाऊंगा? सबसे पहले विच पेन आई नीड टू गो इनटू? Perfect. I need to go into the section of pane of visualization. Step number 1. Step number 2, मुझे कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? Yes, ये ब्रश पे, that is, हाँ, that is format your report page. So अगर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप, so this is called, first of all, which view are you in? You are in the report view. ये ब्रश आप अगर ढूंढोगे ना, टेबल व्यू में नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको जहन में होना चाहिए कि मैंने आपसे कहा, पहले क्वेश्चन क्या है कि मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। मतलब सोचिए, आप डिजाइन के रिलेटेड है ना, डिजाइन के रिलेटेड कुछ भी होगा, आपको आर व्यू में ही रहना पड़ेगा। आर मींस द रिपोर्ट व्यू, तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट व्यू पे पहुंच जाओगे। फिर मैंने आपसे कहा मुझे पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, सो आप कहाँ पे जाएंगे? यू विल गो अंडर द विजुअलाइजेशन पेन, यू विल गो टू दिस ब्रश, एंड ये जैसा माउस लेके जाएंगे ना, वो खुद खुद बोलेगा आपको, ये देखिए, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। ओके, Sayed sir, next. Perfect. Canvas कौन सा section को दे रहे हैं? Very nice. Canvas background. And that is the reason मैंने आपसे कहा था कि ये पेज को 2 शब्द है, पेज भी कहते हैं आप और कैनवस भी कहते हैं। So far so good. Perfect. फिर आप कहाँ पे गए कैनवस बैकग्राउंड में? आपने क्या किया? आपने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया एंड ट्रांसपेरेंसी को आपने कम कर दी। बराबर है, ठीक है। कैनवस बैकग्राउंड कलर, कलर को एक ऐसा कलर दे दो आप,
ये मैंने ग्रिप और ये ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। वेरी गुड, इसको 0 कर दो। ये देख, ये ट्रांसपेरेंट है 100% और ये 0%। 0 नहीं बोल सकता कि 5%, तो ये 0। तो थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है मुझे कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, मगर ये ट्रांसपेरेंट जरा भी नहीं है। ये this is not transparent. This is so because you said 100% transparent, this is 100% transparent. तो that is the reason, देखो ना कलर दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, मगर मैंने जब उसको बोला भाई नहीं 0%, तो फिर क्या होगा, जो कलर दिया ना आपने वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। डिजाइनिंग का ज्यादा मैं आप लोगों को व्हेन यू आर टायर्ड ना तब मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे हिसाब से एवरीबडी गेट्स टायर्ड इन द लास्ट 45 मिनट्स ऑफ द क्लास, क्योंकि उसमें क्या है, इट्स मोर रिगार्डिंग टू क्रिएटिविटी। ओके, तो जो सबसे ज्यादा इसमें डिफिकल्ट जो टेक्निकल टर्म्स होगा ना, दैट आई विल टेक फर्स्ट। तो थोड़ा इजी रहेगा ना, दैट आई विल टेक सेकंड। एंड वॉट एवर आई टीच यू व्हेन आई स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, मैं पहले आपको उसका ओवरव्यू दूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। आप सभी को एक चीज मालूम होना जरूरी है, ये क्लास का मेन पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग the 6-7 classes whatever we have, you have to create a report in front of me, not after me, not before me. In the class you have to create at least one simple basic report। मतलब उसमें क्या हुआ, खाली कनेक्ट करना है, क्लीन करेंगे, विजुअल रिपोर्ट डन। उससे क्या होगा, उससे जो भी आपने सीखा ना आपका हाथ बैठ जाएगा। चलिए लेट्स गो हेड। ओके, कलर डन, एवरीबॉडी ओके? अच्छा, now let's come back, where are we now? I am moving back to the first option that says add data to your visual। ये देखिए अंडर द विजुअलाइजेशन पेन, टेक या माउस ओवर इट, वो खुद ऑप्शन का नाम ही है add data to your visual। तो वन क्विक रिकैप, आप जब भी रिपोर्ट व्यू में हो, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल डिफरेंट पेन्स। सबसे ज्यादा पेन इसके पास ही है, सेक्शंस, ठीक है? तो मैं कहां पे गया, आई वेंट टू द विजुअलाइजेशन पेन। द विजुअलाइजेशन पेन इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 सब डिविजन। एक में सारे आपकी विजुअल्स है और दूसरा कहता है फॉर्मेट योर पेज। मैं कहां पे गया, मैं फॉर्मेट योर पेज में गया ताकि मैं क्या कर सका, ताकि मैं कैनवस बैकग्राउंड चेंज कर सका। एक बार मैंने कैनवस बैकग्राउंड चेंज कर लिया, देन आई अगेन मूव बैक वन टू द लेफ्ट हैंड साइड और मैंने क्या क्लिक किया है, आई हैव सिलेक्टेड ऐड डेटा टू योर विजुअल, व्हिच इज द फर्स्ट ऑप्शन वंस अगेन। एवरीबॉडी ओके विथ मी? अब मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दिया जो कहता है ऐड डेटा टू योर विजुअल। अब अगर आप देखेंगे जुलाई 2017 में ना, आई एम गोइंग टू द टेबल व्यू, ओके, बिकॉज मैं आपको ये जुलाई 2017 का डेटा बताना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1, मैं कहाँ पे गया, आई वेंट टू द टेबल व्यू। फिर मैं कहाँ पे गया, मैंने जाके मैंने एक्सप्लिसिटली क्या किया, मैंने ये टेबल पे क्लिक किया। जब मैंने ये टेबल पे क्लिक किया तो इसका आउटपुट दिखेगा, अगर मैं ये टेबल पे क्लिक करूंगा तो उसका वो दिखेगा। इनफैक्ट अगर कोई कॉलम भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो थोड़ी कॉलम बताएगा, वो पूरा का पूरा टेबल बताएगा आपको उसका। तो आपको मैं एक सिंपल हिंट बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास 4-5 टेबल्स ऑलरेडी है एंड आप बोलो कि मैं कहाँ जाके सेलेक्ट करूँ, तो सिंपल है, आप ना वो टेबल का कोई नाम ले लेना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ, हाउ डू यू नो, ये देखिए मैं आई एम, यस यू आर राइट सर, आई एम इन दिस सीसी क्रेडिट कार्ड में हूँ। आई विल यूज दिस बॉक्स, ये सर्च बॉक्स में जाऊंगा और मैं कॉलम का नाम लिखूंगा। मान लीजिए कॉलम का नाम है इन्वेंट्री, INV। देखिए जैसे मैंने INV लिखा तो बता रहा है कि भाई INV मेरे पास डेटा में भी है और इधर भी है। तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। जब आप ना 5-6 टेबल लोड करेंगे ना, तो ये अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड सर्च बॉक्स आपको सारे व्यू में है, कोशिश करिए कोई भी व्यू में जाइए, सर्च बॉक्स तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, देखिए आप, और वहां पे जाके ना INV लिख दीजिए। आपका क्या स्टोरी बनेगा कि जब आप डेटा लोड करेंगे, आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए ना, तो आप सिंपली उसका एक सिंपल नाम ले लेंगे और बता देगा कि ये टेबल में है। और अगर आपने वो कॉलम पे क्लिक कर दिया तो वही टेबल लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा आपको। मगर ये चीज याद रखिए आप, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था दैट व्हेन यू आर वर्किंग इन पावर BI डेस्कटॉप, यू आर अ डेवलपर। व्हेन यू प्रेजेंट द डेटा टू समबडी, वो डेवलपर नहीं है, वो कंज्यूमर है, यू आर द डेवलपर। आप रिपोर्ट बना रहे हैं, वो सिर्फ रिपोर्ट व्यू देखेगा, वो आपका टेबल व्यू नहीं देखेगा। Am I okay with you all? तो आपको वो जहन में रख के फिर काम करना है ना। मैंने क्या किया, वंस अगेन
इफ यू लुक एट माई स्क्रीन प्लीज, मैंने ये कोई भी कॉलम पे क्लिक किया, जैसे आपने कॉलम पे क्लिक किया, ये देखिए इन्वेंट्री आइटम यहाँ बता रहा। अगर मैंने ये ऊपर वाले पे क्लिक किया, अब देखिए ये इन्वेंट्री कॉलम की मतलब दोनों सेम ही है, एक टेबल है और एक नेम रेंज है, बट अभी के लिए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बट इज चेंजिंग, लुक एट दिस। एंड नाउ यू विल से अरे मेरा बाकी का टेबल किधर गया। यू शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि ये क्रॉस पे क्लिक करो तो बाकी का दिखेगा, अदरवाइज वो ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग को लगता है कि बाकी का डेटा मेरा किधर गया, तो यहां से आप निकाल दीजिए इसको, फिर आपको पूरा डेटा दिखेगा। अभी बेटर। चलिए, फिर मैंने आपसे क्या बात किया था कि व्हाट आर माय डिफॉल्ट विजुअल्स। नाउ अंडर द विजुअल्स हमने बात किया था, वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट वन, द क्लस्टर कॉलम चार्ट, द सेकेंड वन टेबल। हमने इन दोनों के बारे में बात किया। ओके, नाउ लेट अस मेक इट इजी, वी विल डिसाइड व्हाट विजुअल वी वांट। ओके, एंड मैंने आपसे एक और चीज कहा था कि इम्प्लिसिटली व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन पावर बीआई यू आर क्रिएटिंग अ पिवट टेबल। आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्टली इट विल बी गिवन टू यू, नोबडी विल आस्क यू। सो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेप नंबर 1, आप माउस लीजिए एंड गो एंड क्लिक ऑन द टेबल। करिए आप, दोबारा कहता हूं, take your mouse and go and click on the table visual. Which is the table visual? 1 2 3 4 5, fifth row, 1 2 3 fourth column, fifth row, fourth column. अदरवाइज आप आइकन देख लीजिए, आइकन से मालूम पड़ जाएगा दिस इज योर टेबल। ये देखिए आप, जैसे आपने इस पे क्लिक किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके पेज में वो विजुअल आपका ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको लगा नहीं मेरे से गलती हो गई, मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग इज दैट दिस विजुअल राइट नाउ इज सिलेक्टेड। ये देख रहे हैं आप, हाउ डू आई नो इट सिलेक्टेड, ये मार्कर्स आपको मिल जाते हैं, दैट मीन दिस पर्टिकुलर विजुअल इज सिलेक्टेड। नाउ कीपिंग दिस सिलेक्टेड, आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली जाके कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यही कॉलम चार्ट बन जाएगा। अभी अंदर कोई डेटा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कॉलम चार्ट है। इसके अलावा अगर आपने मान लो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा। तो कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आई कैन चेंज अ विजुअल डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट। ऐसा नहीं कि अगर मैंने टेबल बना दिया तो वो टेबल ही रहेगा। अगर आप एक्सेल में भी सोचेंगे ना, तो एक्सेल में मान लीजिए आपने कोई कॉलम चार्ट बना दिया, देयर इज एन ऑप्शन चेंज चार्ट टाइप, उस पर क्लिक करोगे, यू कैन चेंज दैट इनटू लाइन चार्ट, चेंज दैट इनटू एरिया चार्ट। तो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कॉन्सेप्ट। वेयर एम आई राइट नाउ, आई एम बैक इनटू अ टेबल। दोबारा कहता हूँ स्लो, वेयर एम आई एम इन अ टेबल। अभी एक चीज मैं आपसे जो कहता हूं, दैट इज माय एक्सपीरियंस, ये आप डायरेक्टली नहीं लेंगे, आप ट्राई करेंगे। अगर ठीक लगा यू विल कैच इट, नहीं लगा यू विल एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। मैं आपको ये कहता हूं कि व्हेन यू वर्क प्रोफेशनली यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ टेबल। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि इसके फिगर सही है, ये डेटा सही बता रहा है, फिर आपको कौन सा भी चार्ट बनाना है यू विल सिलेक्ट। एज वी गो हेड इन द क्लास वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट विजुअल्स और कौन सा डेटा के लिए कौन सा विजुअल इज अप्रोप्रिएट। कभी कभी वी क्रिएट विजुअल्स मगर हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को दिखाना क्या है हमें। आई रिपीट, अगर मान लीजिए मुझे किसी को कंट्रीब्यूशन बताना है और एक ही पाई चार्ट में 50 टुकड़े हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू नो कि आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। सो एज वी गो हेड, ओके, हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दिस स्टेप्स आल्सो। हाँ हाँ, तो मैंने टेबल पे क्लिक किया। अभी मैंने ये देखिए आई हैव समथिंग एज सोल्ड बाय। ओके, सो मैं कहां पे गया, आई एम इन विच टेबल, जुलाई 2017। और हाउ डू आई नो कि सोल्ड बाय इज अ टेक्स्ट। अगर आप यहां पे देखेंगे ना, हाँ, देयर इज नथिंग ओवर हियर, दैट मींस इट इज अ कैटेगोरिकल डेटा, मतलब कैटेगरी समझो उसको, टेक्स्ट समझो। अगर ये नंबर होता ना तो सिग्मा साइन मिलता आपको, अगर ये डेट है तो ये डेट मिलता आपको। अब ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे कहते हैं टेक्स्ट या कैटेगोरिकल डेटा। ओके, सो मैंने क्या किया, आई वांट टू ऐड दिस फील्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर विजुअल। अब मैंने आपको क्या क्या तरीके बताए थे, हाँ बोलिए आप। चलो क्लिक, अब सर अभी वो क्लिक का प्रॉब्लम है सर, क्योंकि क्लिक का मतलब दो चीज हो सकता है, क्लिक में हाईलाइट भी होता है और सिलेक्ट भी होता है। हाँ तो बताइए क्या करो, आप सिलेक्ट बोलेंगे, सुनिए आप, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बोला हाईलाइट तो मैं ये नाम पे सिलेक्ट करूंगा, अगर आपने कहा सिलेक्ट तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा। आप बताइए, परफेक्ट, तो आप सिलेक्ट की बात कर रहे हैं।
तो मैंने ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया, तो ये देखिए जो भी मेरे सेल्स पर्सन है सभी के नाम एक एक बार दिख रहे हैं। ये देखिए आप, इन दी एक्चुअल डेटा एक ही आदमी का नाम 100 बार होगा, बट यहाँ पे एक ही आदमी का नाम एक ही बार आ रहा है। क्यों? बिकॉज इम्प्लिसिटली यू आर क्रिएटिंग अ पिवट टेबल। अब मुझे ये देखना है कि आई हैव सोल्ड बाय, और मुझे क्या देखना है, मुझे इसका टोटल प्राइस देखना है। अब मैंने क्या क्लिक कर दिया? प्राइस। तो अब मुझे ये सम ऑफ प्राइस बता रहा है। मतलब हमने क्या प्रॉब्लम देखा था? हमने प्रॉब्लम ये देखा था कि अगर मुझे वही प्राइस का एवरेज देखना है तो वो चेकबॉक्स पे नहीं आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, तो अभी क्या करेंगे आप दोबारा क्लिक करो चेकबॉक्स पे, देखो वो प्राइस जो ऐड हुआ था वही निकल जाएंगे। आई रिपीट, हाँ, आप अगर दोबारा ये प्राइस पे क्लिक करेंगे तो वो जो प्राइस आपने ऐड किया था वही निकल जाएगा। तो फिर नाउ हाउ विल यू ऐड द प्राइस इन दैट विजुअल? क्या करेंगे आप? परफेक्ट, आपने यू विल हैव टू ड्रैग दिस प्राइस एंड ड्रॉप इट बैक डाउन। ओके, ये देखिए आप। सो आइदर आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर, ऑप्शन नंबर 1, और आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर, ऑप्शन नंबर 2. But the checkbox is not a good option. The checkbox is a good option only to add it once. दोबारा कहता हूं, the checkbox is a good option only to add it once. उसके बाद I have to either drag it and drop it over there or drag and drop it over the visual. अगर आपने विजुअल पे नहीं रख के बीच में छोड़ दिया ना तो खुद ही कॉलम चार्ट बना देगा वो भी देख चाहिए तो वो भी देख लो। अगर आपने गलती से यही प्राइस को लिया आपने और आप यहां से उसको यहां छोड़ दो इन बिटवीन, फिर देखिए वो कॉलम चार्ट बना देगा बाय डिफॉल्ट। कॉन्सेप्ट? चलो, एक्सीलेंट। ना आर वी ऑल टुगेदर सो फार सो गुड? यस। अच्छा, ना बैक टू माय स्क्रीन प्लीज, वन लास्ट एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मुझे अगर ये सम ऑफ प्राइस है ना, मैंने इसको क्या बना दिया? एवरेज बना दिया। यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे क्लिक करूंगा मैं? यस, ये ड्रॉप डाउन पे, ये एरो पे, ठीक है। यहां से यू विल गेट ऑल द समराइजेशन। आई रिपीट स्लोली, यू विल गेट ऑल द समराइजेशन लाइक मिन, मैक्स, सम, एवरेज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये देखिए आप, तो ये शो वैल्यू एज में, ये देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में मिल जाएगा आपको। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा एवरेज। ओके, आई गॉट द एवरेज। नाउ द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन इज that I want to show the rupee symbol over here. I repeat, I want to show the rupee symbol over here. तो मैंने, so now कैसे करेंगे हम? मैंने आपसे कहा था there's a difference between highlighting and selecting. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्राइस को, प्राइस के नाम पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, याद है? नॉट ऑन द चेक बॉक्स, आई हैव टू क्लिक ऑन द वर्ड कॉल्ड प्राइस। द मोमेंट यू डू दैट, ये देखिए आप, ये एक नया टैब दिखेगा आपको कॉल्ड कॉलम टूल्स। यस, मैं दोबारा कहता हूं, किस पे क्लिक किया आपने? आपने बकायदा नाम पे क्लिक किया। देखिए गलती क्या होती है? गलती होती है कि आप एक चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेकबॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड। यू हैव टू गो ओवर द वर्ड। ये जो मैंने रेड में बॉक्स बनाया ना, आपको इसके ऊपर जाके उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी ओनली देन यू विल सी अ न्यू टैब कॉल्ड कॉलम टूल्स। कॉलम टूल्स में ये देखिए, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा दैट टू अंडर द ग्रुप कॉल्ड फॉर्मेटिंग, that I can select the currency that I want. Concept? And अगर एक बार मैंने यहाँ से change कर दिया, it will change everywhere wherever you want to use it. So now I go to the drop down from here, okay, and I will take a little time and look for English India. So under English India there are different Indias over here, but somewhere I get the rupee symbol. I will not go for the, I get from the first one which I see is Bangla India, but I can see the rupee symbol. तो रूपी सिंबल मुझे दिख गया ना, आई एम प्रीटी गुड। प्रीटी गुड मतलब आई एम ओके टू गो अहेड विद इट। ये देखिए, मैंने अलग अलग मैंने इनको फॉर्मेट नहीं किया। मैंने अलग से रुपीस को, प्राइस को, अलग एवरेज को मैंने नहीं किया। मैंने किसे किया? आई हैव ओनली फॉर्मेटेड द फील्ड। मैंने इसे फॉर्मेट किया। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां जहां पे आप ये यूज करेंगे वहां वहां वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली जाके एक एक को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट? या चलिए, now before I go ahead, I will also save my file and save. Okay, important for me.
नहीं 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 इनका इनका कहना ये कि ये मैंने हाईलाइट किया, ये करेंसी का ड्रॉप डाउन है ना, इनका पूछना ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, इट्स अ लिटिल टीडियस, ये ढूंढना पड़ता है, तो एक दो बार ढूंढोगे ना हाथ जम जाएगा। बट ये सेम प्रॉब्लम ना आपके एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी सेम प्रॉब्लम है सर, आपको उधर ही ढूंढना पड़ता है, उधर एक बार दो बार करोगे आपका हाथ बैठ जाएगा। मैं जनरली जब सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ऊपर से 30% डाउन, आपने सेलेक्ट किया सेल, फॉर्मेट में जाएंगे ना, तो आपको 30% डाउन करेंगे तो INR मिलता है आपको, अंडर एंड अनलेस आपने सिस्टम यहाँ से खरीदा है, विजय सेल्स या वहाँ से, या किसी ने आपके कंट्रोल पैनल में डिफॉल्ट करेंसी को रुपीज कर दिया, तो फिर डिफॉल्ट करेंसी रुपीज मिल जाएगा। एक हिंट देता हूँ, एक अलग जगह ले, एक शीट ही ले, और सब तेरे मेन करेंसी है ना, एक एक को लिख के रख दे, और फॉर्मेट प्रिंटर यूज कर, बहुत काम में आएगा, मेरे को याद रखेगा। Format painter is there. Now, for example, I'm looking for a client, okay, and I know कि ये चार करेंसी अलग अलग मुझे चाहिए, कभी रुपी, कभी डॉलर, कभी पाउंड एंड कभी येन। तो मैं क्या करूंगा, मैं चार सेल में ना, एक में डॉलर, एक में येन, एक में पाउंड लिख के रखूंगा, और जहां मुझे चाहिए फिर फॉर्मेट पेंटर करके पॉसिबल। दैट इज अगर ड्रॉप डाउन से आप कहना चाहते हैं कि भाई नंबर यहाँ पे और करेंसी बाजू में, अगर उसी में तुझे फॉर्मेटिंग करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर बाजू में आप लिख रहे हो देन यस, देन करेंसी वरना मैं तो कुछ भी लिखूंगा, मैं इंडियन रुपी को रुपया लिखूंगा, कौन रोकेगा, फिर दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, एक ही चीज का 10 वेरिएशन आ जाएंगे। चलिए सोफा सो गुड। अच्छा सैयद सर गैस मारिए, लुक एट माई स्क्रीन, आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को निकाल के मैंने खाली 8 एंड मैंने, आई जस्ट जूम माय स्क्रीन सर, ये बाइंडर्स को मैंने ऑन किया, my question to you is, will your report view change depending on my filter? It's your opinion sir, just a guess, what do you think, कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, what do you think, what's your opinion? हाँ, जब मैं ओके करूंगा ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा, but will my report view change? That's the question, कोशिश करिए। I'll tell you why, I'm telling, I will explain, मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, I will explain, but अभी के लिए just give it a shot। कुछ भी भलता भलता फिल्टर मारो आप, वो सेम डेटा ही बता रहा है आपको, सेम डेटा ही बता रहा है। सर आप ये, मैं जुलाई 2017 में गया, मैं इन्वेंट्री आइटम में गया और मैंने फिल्टर कर दिया, फिल्टर मतलब मैंने ऐसे ही करके मैंने ये दो सेलेक्ट कर दिया, मैंने ओके कर दिया। अभी आप क्या देख रहे हो, जो मैंने फिल्टर किया है वही डेटा, वही रो लेवल डेटा यहाँ पे है। रिपोर्ट में जाइए, हाँ, या यर व्हेन यू डू इट, यहाँ यहाँ तो फिल्टर रहेगा, बट व्हेन यू गो टू द, ये पूरा दिख रहा है। Am I okay? ये मैंने आपसे क्यों पूछा, देयर इज अ रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस, मैं दोबारा कहता हूँ देयर इज अ रीजन व्हाई। सर आपने ट्राई किया, सर आपने ट्राई किया, हाँ क्लिक करिए, हाँ चलिए चलिए, ये टेबल में जाइए, आप इन्वेंटरी आइटम क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, क्योंकि ये हमारा हमने इसमें भी करा है, इस कॉल पे क्लिक कर दीजिए, इसी दो को ले लीजिए, ठीक है, अभी बाहर क्लिक करिए या थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ये हो गया। अगर इधर जब भी आओगे ना तो पूरा का पूरा डेटा दिखेगी, तो उसका कहने का ये क्या हुआ कि आपके फिल्टर करने से आपकी रिपोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नाउ, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आई एम टीचिंग यू इज, वो व्यू पे इस पे चेंज नहीं होता, रिपोर्ट व्यू पे चेंज नहीं होता, जो भी हम टेबल पे फिल्टर करेंगे। perfect, you got it, but did you try it, did you try it? I'll wait, I'll wait, but remember try it at the right table, huh? What do I mean, remember Savita, we are using the table of July 2017, आप ऐसा करके don't filter anybody else assuming कि यहाँ change होगा, you properly have to go to this table in the table view
and just filter the data from, just filter it, any random column, pick it up and just filter it. So the conversation we are trying to make over here is that if you filter any data from the table view, it's not going to make any difference in the report. In the report. Got it. Now, okay, when you are loading data, कोई भी data हो, is it Excel, it is any kind of a data, आपको ये मालूम होना जरूरी है, it goes through particular layers. Let me explain. मान लीजिए इसे हम Power BI बुला देते हैं. Okay, so for me, this is Power BI. Okay, ignore. In between, we have something called as a filter. Now listen to this. आप जब भी डेटा लोड करते हैं ना, सबसे पहले योर डेटा गोज इनटू दिस फिल्टर. ये फिल्टर क्या डिसाइड करता है? हर कॉलम का सबसे पहले वो आपका हेडर डिसाइड करता है कि क्या ये डेटा में हेडर है या हेडर नहीं है. स्टेप नंबर 1. अगर हेडर मिल गया ना, तो जबरदस्ती ही विल डिटेक्ट कि इज इट अ नंबर और इज इट अ कैरेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप. पहले क्लास में हमने ये देखा था कि इन वन कॉलम यू कैन नॉट हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स, यू कैन ओनली हैव अ सिंगल डेटा टाइप. तो वो डेटा टाइप डिटेक्ट करता है, एंड आफ्टर द डेटा टाइप फिर क्या करता है, देन द डेटा गोज इनटू योर पावर बीआई रिपोर्ट. जब वो रिपोर्ट में आ जाएगा, ओनली देन इट इज अवेलेबल टू योर आर डी एंड एम. इसका मतलब ये होता है कि अभी तक आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि पावर बीआई ये रूट ले रहा है, ये रूट. व्हाट इज दिस रूट? कि डायरेक्टली से एक्सेल डेटा कहां पे लोड हो रहा है, आपके आरडीएम में, जो बेसिकली गलत है. इम्प्लिसिटली, आई रिपीट, इम्प्लिसिटली इट इज गोइंग थ्रू दिस. आप बोलोगे ऐसा कैसा, मुझे तो मालूम भी नहीं है. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट डे, दिस इज सेकंड डे यू आर यूजिंग पावर बीआई. तो इम्प्लिसिटली जब भी आप डेटा लोड कर रहे हैं ना, इट इज गोइंग थ्रू पावर क्वेरी. आपको पूछ भी नहीं रहा है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है. पावर बीआई में क्या किया उसने, आपने डेटा जैसे लोड किया ना, उसका पाथ लिख देता है, पाथ. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, हेडर है ना, वो बताता है कि ये हेडर है, एंड हर कॉलम को वो क्या देता है, एक डेटा टाइप, और फिर क्या करेगा, वो उसे लोड करेगा. आई गिव सिंपल एग्जांपल. मुझे डेटा आया है ऑफ 7 वेसल्स, बट मेरे को आपके 7 वेसल से कोई लेना देना नहीं है. आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 वेसल. व्हाट विल आई डू? बट द फाइल्स कमिंग फ्रॉम हियर, आई वोंट टेल मी अलग रिपोर्ट बना के दे. ही विल मेक ओनली 1 रिपोर्ट. We all are going to work with that, but I am going to work only with a single vessel. I will go to Power Query and I will filter the data there, and I will only select that one vessel. He gives me data for the last 1 month. I will go and put a filter, only give me the last 7 days. तो जब जब डेटा यहाँ से लोड होगा, पहले वो फिल्टर में जाएगा. जो वेसल मैंने सेलेक्ट किया है ना, वही वेसल मिलेगा. और लास्ट 7 डेज रिलेटिव फॉर टुडे, आज से लेके 7 डेज का डेटा मिलेगा. ही विल गिव मी 1 मंथ डेटा, बट वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा. और वो जो फिल्टर डेटा है ना, वो कहां पे जाएगा, मेरे आरडीएम में जाएगा. सो नाउ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक कॉल्ड पावर क्वेरी. एंड पावर क्वेरी, आपको लगता है कि आपने पावर क्वेरी यूज नहीं किया है, बट अभी तक आपने जो भी पावर बीआई सीखा है, यू हैव यूज्ड पावर क्वेरी इम्प्लिसिटली. नाउ वी विल यूज पावर क्वेरी एक्सप्लिसिटली. हम प्रॉपर्ली इसके इंटरफेस में जाएंगे. क्लियर? चलिए. सो हाउ डू यू गो इनटू पावर क्वेरी? You can go to the modeling tab. Come to the modeling tab, everybody. Modeling tab. Modeling tab. Okay, sorry. Come to the home tab. First tab, home. Home, insert, modeling. Come to the home tab. आगे home tab में under the group called queries. धीरे बोलता. Under the group called. देखिए, अगर मैंने टैब कहा तो आपको मालूम है आपकी नजरें कहां पे जानी चाहिए. अगर मैंने आपको ग्रुप कहा, आपको मालूम हो जानी चाहिए कि नजरें कहां पे जानी चाहिए. सो मैंने आपसे क्या कहा, होम टैब. मैंने कहा क्वेरीज ग्रुप. अंडर द ग्रुप कॉल्ड क्वेरीज इज एन ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसफॉर्म डेटा. उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक मत करिए, वो ऑप्शन पे ही क्लिक करिए, सेंटर पे क्लिक करिए. दोबारा कहता हूं, डोंट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन द सेंटर ऑप्शन. जैसे आपने सेंटर पे क्लिक किया ना, आप देखो पूरा का पूरा इंटरफेस ही चेंज हो गया आपका. मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, कोई भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना. ओके, बट 4-5 टैब्स है, इधर उधर क्लिक करो, खाली देखने के लिए कि क्या है ये, जस्ट टू अंडरस्टैंड के स्क्रीन पे क्या है. किधर भी आपको आर नहीं मिलेगा, टी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. ये सविता मैम, सॉरी. Which sheet? I clicked on queries. That's it. But nothing. Transform data.
Yeah, under the queries group, transform data as the button map. Under the home tab, queries group, transform button. Found it? Okay, should I? Yeah, click on it. Yes, yes. And one more thing, it is not with respect to table. हाँ? ऐसा नहीं कि आपने ये टेबल पे क्लिक किया फिर ट्रांसफर पे क्लिक किया. इट इज नथिंग रिलेटेड टू टेबल. आप देखो जो भी आपने लोड किया ना टेबल, सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेंगे आपको. लुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल सी ऑल द टेबल्स. Okay, so we have clicked on transform data and then I am on CC. That's it, right? Perfect. Now what I want you to do is I simply want you to go through the different tabs. Don't click on any option, but just glance what options you can see on the screen. It is all with respect to transforming your data. मतलब cleaning, split करना है, extract करना है, rows निकालना है, columns निकालना है. ओके ऐसा कभी होगा आपके पास कि आपके पास स्टैक ऑफ डेटा मिलेगा. मतलब जनवरी का डेटा आएगा, फिर किसी ने फेब का डेटा भेजा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी के नीचे फेब का डेटा लाना पड़ेगा. क्योंकि आपको 12 महीने के लिए 12 पिवट टेबल नहीं चाहिए, आपको एक ही पिवट टेबल चाहिए. तो कल फेब का मार्च का महीना आ गया, तो मार्च किधर जाएगा, जैन फेब, फेब के नीचे मार्च. तो वो कैसे करेंगे आप, सब हम सीखेंगे. So far so good. Yes. Okay. Now, सबसे पहले everybody stop. पहले let's look at the interface. वो जो पहला वाला रूल है वो अभी भी यहाँ पे है कि आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते. वो भी कर लो, आप सिलेक्ट करो. आप लिख नहीं सकते. देखो आप, उधर भी नहीं था इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं था इधर भी नहीं है. कॉलम नेम, रो नंबर, सेल का एड्रेस नहीं है. कॉलम का नाम है, सेल का एड्रेस नहीं है. सेल एड्रेस इज द कॉलम नेम एंड द रो नंबर. वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी नहीं है और आपके टेबल व्यू में भी नहीं था. तो नथिंग न्यू अबाउट इट. नाउ सुनिए, पावर क्वेरी में आप जो भी चीज कर रहे हैं इट गेट्स रिकॉर्डेड. अगर मैंने ये लाइन कहा तो आपके जहन में क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल. एक मिनट, ये माउस का मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं होता. ऐसा ऐसा मैंने किया, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं होने वाला. Am I okay with you? Everybody okay? हाँ. मतलब अगर मैंने कुछ भी एक्शन किया, आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन. डेटा आया ना, ये क्रेडिट कार्ड का डेटा, ये कार्ड टाइप में मैं बोलूंगा मुझे ये सबका कार्ड नहीं चाहिए, मुझे खाली प्लैटिनम चाहिए और मुझे गोल्ड चाहिए. तो वो क्या करेगा, वो उसे रिकॉर्ड कर देगा. और जब जब ये डेटा लोड होगा ना, तो पहले कहाँ पे जाएगा, पावर क्वेरी में. पावर क्वेरी क्या कर देगा, पूरे डेटा को स्टॉप कर देगा. किसको जाने देगा, सिर्फ गोल्ड एंड सिर्फ प्लैटिनम को जाने देगा. मेरे ये इतने बोलने से आपके जहन में क्या आया विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल कुछ. बट दिस इज नॉट अ मैक्रो, दिस इज अ मिडवे. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ मैक्रो डज. मैक्रो भी वही चीज करता है, वो आपको रिकॉर्ड करके दे देता है. हमको लगता है बटन दबा दिया हो गया करके. दिस इज अ मिडवे बिटवीन मैक्रो एंड दिस. मैक्रो में आपको लिखना पड़ता है. ये आप बटन दबाते हैं, ये खुद ही लिख देगा आपके, ये खुद लिख देगा आपके. दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. जो पावर क्वेरी के मशीन से बाहर जाता है ना, उसे टेबल होना जरूरी है, header and data, whereas macro can write the data to A11, K20, Z22, M19. वो कुछ भी किधर भी कर सकता है. but the output of power query has to be a table. अगर मैंने आपको टेबल कहा ना, आपके जहन में क्या आना चाहिए, वो टेबल व्यू है ना हमारा, उसमें कोई चांस ही है क्या, हेडर है और डेटा है, उसके अलावा कुछ और देखा आपने. एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन कि यू में हैव एनीथिंग कि मुझे ये लोड करना है पावर बीआई में, मेरे को ये डेटा का, पहले ये तो देखो आपके क्या वो डेटा पर्टिकुलर फॉर्म में है. क्योंकि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो पहले अपने को एक लेवल नीचे आना पड़ेगा और हमें पावर क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम उस डेटा को पूरा क्लीन कर सके, ताकि उस पर हम काम कर सके. सो फार कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी ओके. अच्छा, सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन द इंटरफेस, देन विल टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल स्टार्ट टीचिंग. पहले मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसे हम कहते हैं द क्वेरीज पेन. दोबारा सुनिए, इट्स कॉल्ड द क्वेरीज पेन. क्वेरीज मतलब जो भी आपके जो टेबल है ना, सब यहाँ पे दिखेंगे आपको. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये है, एक बार पावर बीआई में आ गए ना, वो सभी को टेबल ही बना देता है. ये देखो आप, फिर वो नेम रेंज कुछ काम का नहीं. एक बार वो लोड हो गया ना किधर, पावर बीआई में, या पावर बीआई में आ गया ना, तो उसके लिए वो टेबल ही है. देखिए आप, लुक एट द आइकन. हकीकत में क्या ये तीनों के तीनों टेबल है, सवाल ही नहीं है. तीनों के तीन टेबल नहीं है, खाली वो
जुलाई ना, जुलाई वो टेबल है, सीसी क्या है, वो तो सीएसवी है, और डेटा क्या है, वो वर्कशीट है। टेबल एक ही आदमी है, मगर जब आप पावर बीआई में आ जाते हो ना, तो आप इम्प्लिसिटली सबको क्या देखता है, भाई टीवी टेबल, सब टेबल ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं है उसके पास। क्यों? आइकन देखिए, आइकन से मालूम पड़ेगा। चलिए लेट्स मूव। दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट पेन। अगेन ना, PANE section, PANE. This is called the result pane. Result pane means where your data is visible. On the right hand side, this is called the query setting. This is like the heart and the soul of your Power Query. सिंपल बोलता हूं, जो भी आप पावर क्वेरी में करोगे ना, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, इधर आएगा। ओके, एंड इट गेट्स रिकॉर्डेड ओवर हियर। एक एक लाइन में एक एक करके रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पे। आप बोलोगे अरे फयाज मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये क्या रिकॉर्डिंग हुआ है ऑलरेडी, ये 3 के 3 ये क्या है, मैंने तो कुछ अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए आपने किया नहीं है, मगर आपके डेटा लोड करने में इसने ये 3 स्टेप लिख दिया है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक ही स्टेप है सोर्स, जो आप डिलीट नहीं कर सकते। बाय द वे, खाली एक ही चीज डिलीट हो सकता है पावर क्वेरी में, दैट इज द स्टेप। अदरवाइज आई कैन नॉट यूज द वर्ड डिलीट, आई कैन यूज द वर्ड रिमूव। जो चीज को आप रिमूव कर सकते हैं, आप उसको दोबारा वापस भी लेके आ सकते हैं। जो चीज को आप डिलीट कर देते हो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, डिलीट। डिलीट मींस परमानेंटली, भाई तू गया। रूल नंबर 2, आप किसी चीज को अंडू नहीं कर सकते। आप कंट्रोल जेड का बटन ही नहीं है आपके पास, हम करेंगे। तो आप बोले अरे मैंने अगर मिस्टेक किया तो क्या करूंगा, मैंने क्या कहा आपसे, अगर आप जो भी करते हो इट इज रिकॉर्डेड एज अ स्टेप, आप स्टेप को निकाल दो, हो गया अंडू आपका। धीरे बोलता हूँ, जो स्टेप रिकॉर्ड है ना उसको डिलीट कर दो, हो गया अंडू आपका। ओके ना, सबसे पहले आप एक काम करिए, यू हैव एक्टिवेटेड द टेबल ऑफ जुलाई 2017 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। करिए आप, क्लिक ऑन दिस। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने जुलाई 2017 पे क्लिक किया। जैसे आपने जुलाई 2017 पे क्लिक किया, आप ये देखिए आपका रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। अगर आपने सीसी पे क्लिक किया, तो देखिए आपका दोबारा ये टेबल आपका चेंज हो जाएगा। क्या है? ओके, आप देखिए ऊपर है ना, जैसे बटन कॉल्ड रिफ्रेश, ये देखिए। हाँ, रिफ्रेश है ना, मिला आपको रिफ्रेश, होम टैब में रिफ्रेश प्रीव्यू, इट विल हैपन। ठीक है, अच्छा ना, वेयर एम आई? अगर मैंने सीसी पे क्लिक किया तो सीसी का आ जाएगा, और अगर मैंने जुलाई पे क्लिक किया तो जुलाई का आ जाएगा। मैं वापस एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे भी ना आपको अलाइनमेंट नहीं मिलेगा। ढूंढते रहना, मैं भी ढूंढूंगा, आप भी ढूंढिए, ये अपडेट होते रहता है। पर मैं आपको दोबारा कहता हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कैन नॉट अलाइन, यू कांट से सेंटर में आ, यू कांट से राइट में जा, यू कांट से लेफ्ट में जा। वो खाली एक ही चीज करेगा, वो कौन करेगा? आपका रिपोर्ट व्यू। क्योंकि वो जो विजुअलाइजेशन है वो एक ही आदमी कर सकता है, दैट्स द रिपोर्ट व्यू। numbers to the right, characters to the left, booleans to the center. Booleans like true, false, we'll talk about it, but booleans to the center. Concept okay, चलो my screen, everybody my screen। अभी ये देखिए, आप ना ऑन द राइट हैंड साइड पहले सोर्स पे क्लिक करिए, सोर्स के स्टेप पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, न्यू सोर्स नहीं, स्टेप नंबर 1 हमने ये जुलाई पे क्लिक किया, जुलाई में। ओके, ये नंबर 1। और नंबर 2 ये देखिए अप्लाइड स्टेप्स में, देखिए सोर्स है ना, उस पर क्लिक करिए। सोर्स देखिए, एंड सोर्स में आप यहां पे देखिए, कैन यू सी द गियर आइकन? देखिए हर एक में ना गियर आइकन नहीं है, मैं दोबारा कहता हूं थोड़ा धीरे, हर स्टेप में गियर आइकन नहीं है। गियर आइकन का मतलब क्या है? आप इस स्टेप को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो। दोबारा बोलता हूं, आप इस स्टेप को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो, मगर अगर वो गियर आइकन नहीं है, तो वो आप डबल क्लिक करके मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे अगर करना है तो फॉर्मूला बाद में करो, और अब आप बोलोगे अगर नहीं मालूम है तो स्टेप को फिर डिलीट मारो, दोबारा लिखो, मगर डबल क्लिक करके वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स में डबल क्लिक है, परफेक्ट। अगर आपने डबल क्लिक करी, उस पर थोड़ा जोर से करना पड़ेगा, कहीं डबल क्लिक, देखिए एक नया इंटरफेस खुलेगा और पूछेगा भाई पाथ क्या है इसका। एम आई ओके एवरीबॉडी? अब पूरा स्टोरी सुनिए, आपने क्या किया, आपने एक एक्सेल फाइल पे कनेक्ट किया। क्या वो एक्सेल फाइल में एक ही शीट था? नहीं, वो एक्सेल फाइल में शीट भी था, टेबल भी था, नेम रेंज भी था। आपने क्या सिलेक्ट किया? दैट केम अंडर नेविगेशन। क्लिक ऑन द सेकेंड वन, नेविगेशन। नेविगेशन
सोर्स के नीचे नेविगेशन, नेविगेशन पे क्लिक करके ना आपकी नजरें कहां पे जानी चाहिए, फॉर्मूला बार में। ये वर्ड देखिए, ये वर्ड बहुत वापस आने वाला है वैभव, मैं आपको पूछूंगा जब इसका टाइम आएगा। देखिए क्या लिखा है, काइंड इक्वल टू टेबल। क्या लिखा है, काइंड, ये शब्द याद रखना, काइंड, KIND, क्योंकि यहां टेबल लिखा है। अगर हमने वो नेम रेंज भी लोड किया था ना, उसका देखो काइंड क्या है, मैं रुका हूं यहाँ। वो सेकंड टेबल का नाम क्या था सैयद सर, डेटा। हाँ डेटा में जाओ और देखो उसमें काइंड क्या है। तो पहले आपने डेटा पे क्लिक किया, यस, वाई सैयद सर, बिकॉज वो क्या था, नेम रेंज। सो अगर वो नेम रेंज था, उसको यहाँ पे डिफाइंड नेम कहते हैं। अगर वो टेबल है तो उसको यहाँ पे टेबल कहते हैं। और अगर वो शीट होता ना, शीट, तो यहाँ पे उसको शीट कहते हैं। आप बोलोगे इतना सब मालूम होने की क्या जरूरत है, अरे आई शुड नो कि मैंने क्या खींचा है, कि कल अगर मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना है, आई शुड नो कि मैंने उसका सोर्स क्या है, इज इट अ टेबल। अदरवाइज सामने वाला बोलेगा सर मैं तो टेबल ले लिया हूँ, मैं बोलूंगा टेबल है तो फिर नया डेटा क्यों नहीं आ रहा है। तो अवेलेबल आई गो टू द सोर्स एंड वन स्टेप डाउन एंड आई सी काइंड में क्या लिखा हुआ है। तो क्या इसने बकायदा टेबल लिया है कि कुछ और ले लिया उसने। बट एक मिनट भाई, वो नाम याद रखना, काइंड, ये कब आएगा मैं बताऊंगा आपको, बट ये वर्ड याद रखना, काइंड इक्वल टू बताएगा। एंड यू नो व्हाट, CSV को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो CSV क्या है, जो CC है वो देखो, उसमें तो काइंड ही नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि काइंड का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। CSV होता है, ये KBC कौन खेलता है, खाली एक्सेल खेलता है। हाँ एक्सेल भी प्ले विथ यू कि भाई तू कौन है, डिफाइन नेम हो, शीट हो, टेबल हो, क्या हो आप। CSV में वो, तो इसका मतलब क्या है कि ओनली वन पर्सन इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सोर्स। बाकी अपना अपना स्टोरी, सबका अपना अपना स्टोरी है। एग्जैक्टली, बट सोर्स इज ओनली वन कॉमन। एंड ये देखिए, आप सोर्स को डिलीट नहीं कर सकते, देखिए वो साइन ही नहीं है, डिलीट का बटन नहीं है सोर्स के बाजू में। हर स्टेप के बाद ना, देखिए उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ एक क्रॉस है, उसके ऊपर जाओगे ना, व्हेन यू गो ओवर दिस, यू इट विल टेल यू डिलीट स्टेप, डिलीट स्टेप। क्लिक नहीं करना, पर खुद बोलेगा आपको डिलीट स्टेप। अच्छा, तो मैं कहाँ पे गया, नेविगेशन, नेविगेशन में क्या आया, काइंड इक्वल टू टेबल। एंड देन नाउ इफ यू लुक, नाउ 1 मिनट, इफ यू लुक एट माय स्क्रीन, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, नेविगेशन। ओके, अभी आप हेडर्स देखिए, हेडर्स, हेडर्स में क्या है ये देखिए, हर हेडर में यू सी ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, ये देख रहे हैं आप। When you see ABC 1 2 3, that means पावर क्वेरी को नहीं मालूम है कि आप कैरेक्टर हो या आप नंबर हो। दैट इज वाई वो क्या दिखा रहा है, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3। सो इट इज द स्टेप कॉल्ड चेंज टाइप, जो हर कॉलम में जा जाके डिटरमाइन करता है कि ये देखिए ये डेट बन गया, ये देखिए ये ABC बन गया, ये देखिए ये 1 2 3 बन गया, ये देखिए ये 1 2 3। सो इट इज द स्टेप कॉल्ड चेंज टाइप विच डिटरमाइंस द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। अगर आप ये सोच रहे कि भाई मुझे डेटा टाइप की क्या जरूरत है, then let me take you back to the first class, मैंने आपसे कहा था that every column has to have a data type। तो वो डिटेक्ट किसने किया, वो पावर क्वेरी ने डिटेक्ट किया। इसका मतलब ये था कि you're on the second day एंड आपने अभी चालू किया मेरे साथ पावर क्वेरी, पर हकीकत में आपका पावर क्वेरी तब चालू हुआ जब आपने पहली बार डेटा लोड किया पावर BI में। क्योंकि कहां पे गया था, पावर क्वेरी में, क्या किया उसने, हर कॉलम पे जाके क्या डिटेक्ट किया, डेटा टाइप। एंड एक चीज याद रखिए, अगर आपने खाली डेटा लोड किया एंड विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एरर आएगा आपको। आप बोलोगे मैंने किया ही क्या है, खाली डेटा लोड ही तो किया है। ओनली वन पर्सन हु हैज द कैपेसिटी टू गिव यू एन एरर, चेंज टाइप। आप बोलोगे भाई, सपोज आपके डेटा में देर आर नंबर्स एंड देन सडनली देर इज अ कैरेक्टर, हो सकता है। तो वो डिटेक्ट किया गया उसने नंबर, क्योंकि वो स्कैन क्या करता है, ओनली 200 रोज फ्रॉम द टॉप। मगर आपने क्या लिखा है, कैरेक्टर, कहाँ पे, 201 202 में, तो आपको मिलेगा एरर। तो जो नंबर्स है वो लोड करेगा, बाकी को बोलेगा सो मेनी एरर्स लोडेड। आप बोलोगे मैंने किया ही क्या है, मैंने तो खाली डेटा लोड किया। आपने लोड किया डेटा, मगर पीछे से क्या आया, एरर। हाउ विल वी डील विद इट, वी विल टॉक अबाउट। सो वन क्विक रिकैप, ओके, द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, ओनली वन गाय इज कांस्टेंट ना, ये सोर्स, हाँ ओनली वन गाय इज कांस्टेंट, बाकी सब चेंज हो सकता है। नेविगेशन आपने देखा, सीएस में नेविगेशन था ही नहीं। एंड ये इसका नाम याद रखिए, चेंज टाइप, ये डिटेक्ट करता है कि आपके डेटा का डेटा टाइप क्या है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स, सुनिए, कम टू कमीशन,
कमीशन कॉलम में आइए, ये आप ये देख रहे हैं 1.2 दिखा आपको, ये 1.2 दिखा है, दिस मींस डेसिमल. Click on this 1.2 and these are all the different data types which are possible. हाँ, not these are all the possibilities. अब अगर मैं बोलूंगा टेक्स्ट तो मुझे एरर दे देगा. अगर मान लीजिए, देखिए मैंने बोल दिया कि आप क्या हो, टेक्स्ट हो, तो देखिए वो उठा के मैं बोलूंगा ऐड ए न्यू स्टेप, ये देखो सब में अभी वो इसने एरर नहीं किया, बट नाउ लुक एट द अलाइनमेंट ऑफ दिस. मेक सेंस? ओके, अगर मुझे बकायदा एरर बनाना ना सर, मैं देखो मैं अभी एरर बनाता हूँ. ये देखिए, ये क्या है, इन्वेंट्री नेम. कैन दिस बी अ नंबर? नहीं साहब, इन्वेंट्री आइटम, इज इट अ कैरेक्टर और इज इट अ नंबर? कैन आई मेक इट अ नंबर? खलास बात. ये देखो अभी अगर मैं बोलूँ ना ABC 1 2 3, आप क्या हो, आप होल नंबर हो. हाँ रुको, हाँ रुको, मैं बोलूंगा ऐड ए न्यू स्टेप. ये देखो क्या हो गया, ये देख रहे हैं आप? अभी आप बोलोगे बाकी में वो पहले वाले में क्या एरर क्यों नहीं आया? भाई नंबर और कैरेक्टर का रूल मालूम है? क्या हुआ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन. आप आप आई वोंट आस्क यू से सर. आप okay, that means not. There's somebody in this class who's a vegetarian, मान लो, that person will never touch meat, never. If you're a number, it is equivalent to a vegetarian person. A number cannot store a character, but a character can store a number. मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 को क्या बोला, आप कैरेक्टर हो तो चलेगा. ओके, फॉर द नेक्स्ट 3 months ऑल्सो अगर मैंने वेजिटेरियन खाना खाया ना, आई कैन नॉट क्लेम आई एम वेजिटेरियन. बाय? बिकॉज सिंस बर्थ आई एम ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. ध्यान से सुनिए, अ कैरेक्टर कैन स्टोर अ नंबर, मगर वो क्या है, कैरेक्टर. मगर अगर आपने नंबर बोला ना उसको, तो वो क्या स्टोर नहीं कर सकता, कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकता. कैरेक्टर कैन स्टोर अ नंबर, बट नंबर कैन नॉट स्टोर अ कैरेक्टर. इसलिए मैंने आपको क्या इक्विवेलेंट दिया था, मैंने आपको कहा कि somebody who's a character is as good as a non-vegetarian and somebody who's a number, that is a vegetarian. नंबर में कैरेक्टर नहीं फिट हो सकता. अभी इसके आगे का है, वी स्टार्ट 4:40, in 10 minutes 50 को स्टार्ट. मैम we'll resume in 10 minutes. Fine, I got it. Thank you. इसको ना मैं अभी के लिए, so that we have